सतगुरु साहिब जी नाहू जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन्तु नाही विसरिया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन्तु नाही विसरिया सोडी सृष्ट सगल तारन को अब गुर रामदास को मिली वडाई अब गुर रामदास को मिली वडाई। जागदी जोत रूहानियत दे मुजस्मे चबर छत तखत दे मालक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, अज धन धन गुरु रामदास महाराज चौथे सतगुरु जी का पावन प्रकाश पुरब है। आप संगतां बड़े प्रेम नाल सिदक नाल जिन्हां अंदर भावना है, दुनिया विच जिथे भी गुरु नानक नाम लैवा संगत बसदी है, अपने अपने वल्लों सारियां ने यतन कीते हन अते संगतां प्रकाश पुरब मना रहीआं हन। आओ अज उन्हां दे जीवन दी जो विचार है उस विचार नाल जुड़ांगे। अमें दास अपने शब्दां दे राहीं पूरन तौर तो कुछ भी बयान नहीं कर सकता, पर जो गुरु साहब आप कृपा करके थोड़े नाल विचारा सांझियां कराणगे, उन्हां विचारां नाल जुड़ना। पिछले दिनों तो गुरु रामदास महाराज के प्रकाश पुरब के संबंध विच लड़ीवार गुर इतिहास संगतां दे नाल साझा कीता। आओ अज उन्हां दे इतिहास की एक होर झाती आपां मारदे हां कि किवें गुरु साहब जी ने अपने जीवन नूं प्रभु प्रेम दे विच ढालिया अते गुरु गद्दी ते विराजमान हो करके जो उन्होंने सानू बाणी की दात बख्शी, इतने सारे सबजैक्ट ने उन्होंने बाणी दे विच, हैरान हो जाइदा फिर इतनी दृढ़ता दे नाल सतगुरु जी ने सिक्खी का प्रचार किया कि जदों उन्होंने बाणी दे असीं शब्द देखते हाँ, ਜਿਹੜੇ भी लोग गुरु घर का विरोध करते सन, सतगुरु जी ने उन्होंने निंदकां नूं साजिशकर्ता नूं
ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਜੁਨ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਪੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘੋੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੋਇੰਦੇ ਮਰਵਾ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰੀਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਲ ਨੇ, ਲਗਭਗ 47 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਕ ਹਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਪਰਬ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸੇ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪਰਬ ਉਸ ਸਿਦਕ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, 10 ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ, 10 ਜਾਮੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਦਕ, ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 47 ਸਾਲ ਇਸ ਫਾਨੀ ਧਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1534 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਅਨੂਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀ
पिता जी ने जिमें अपने जीवन च सिदक भावना ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਵੀ ਉਸ ਸਿਦਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। सच है कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु ऐसी कृपा करता है, जिवें भगत रविदास जी ने बचन किए कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, जाकी छोट जगत को लागे तांपर तू ही धरै, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। मेरा मालक नीवियां नूं ऊंचा कर दिंदा है। ये मेरे प्रभु दियां खूबियां ने। आप जी के पिता बाबा हरदास जी प्रभु प्रेमी ने। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरुआं दे अंदर पहले गुरु साहिबान ने धन गुरु रामदास महाराज, जिन्हां दे पिता प्रभु प्रेमी ने, देवी देवतियां नूं, तीर्थां नूं, होर गल्लां नूं उक्का ही नहीं प्रवान करते। उन्हां दे अंदर एक प्रभु का सिदक टिकिया होया ते कुछ सालां दे विच पिता दे नाल संगत होण दे नाल वो प्रभु सिदक आप जी के जीवन विच भी है। रब जी के उत्ते पूर्ण भरोसा, विश्वास ते अकीदा है। पर रब दी करनी बचपन दे विच माता जी अकाल चलाना कर गए। 7 सालां दे होए, अजे बचपना है, क्योंकि मनुखी शरीर के 12 साल बचपने के मने गए हैं। ये गल नूं समझना, सिक्खी के अंदर भावें 12 साल बचपन के ने, पर सिक्खी ने जो साडे वास्ते मापदंड रखा है, इत्थे बाल जवानी और बिरधपुन 3 अवस्था जान, कहू नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। अवस्था भावें बचपन होवे, जवानी होवे, बुढ़ेपा होवे, सदगुरु कहते परमात्मा के भजन तो बिना सारी जिंदगी व्यर्थ है। बचपना भी व्यर्थ, जवानी भी व्यर्थ, बुढ़ेपा भी व्यर्थ, जे वाहिगुरू जी की बंदगी नहीं, वाहिगुरू जी का सिदक नहीं। जिथे कि आप जी के जीवन में परमेश्वर की लगन है, पर वाहिगुरू जी की करने की जदों बचपन के अंदर बच्चे नूं दुनियावी तौर तो सारे की लोड़ होंदी है, माता पिता दे, उस वेले माँ का भी आसरा नहीं रहिंदा। 7 साल की उम्र होंदी, पिता का आसरा तो सारा भी नहीं रहिंदा। उस तो बाद आप जी का नानी जी बनते हैं, पर जदों आप जी की उम्र 12 साल होंदी है, अजे जमाने वाले पासे नूं कदम रखना आरंभ किया है, नानी भी अकाल चलाना कर जाते हैं। गुरु नानक दे घर का सहारा मिल गया। 1546 दे विच आप जी 12 सालों के होए, गुरु अंगद देव जी महाराज के चरण परसे। गुरु अमरदास पिता महाराज जी की संगत सदका उन्हां दे नाल जुड़ के खंडूर साहब जाते, उत्थे जाके गुरु के दर्शन दीदार करते और जीवन जाच सीखते, क्योंकि उन्होंने अंदर जी भावना सी उतों जागी कि किस ही कोई कोय मंज निमाणी एक तू, क्यों ना मरी जै रोए जान लग चित ना आवे। जी गल कभी गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरु नानक पातशाह नूं आखी सी ना, गुरगद्दी प्राप्त करके, कि मेरे दाता किसी का कोई होर आसरा हो सकता है, पर मैं निमाणी का आसरा केवल तू है। अज ये जो बाणी सुनी ते अंदर भावना जागी, दाता दुनिया विच होर किसी के बेअंत सारे होणगे, पर धन गुरु रामदास पिता कहते मैनूं केवल गुरु नानक के घर का आसरा ते सहारा है। 1546 तो लैके 1552 तक गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा करते रहे। 1552 दे विच गुरु अमरदास पिता महाराज गुरु बने। आप जी गुरु अमरदास पिता महाराज जी की सेवा च लगे। भावें गुरु अमरदास पिता महाराज जी पासों
उन्होंने माँ का प्यार भी मिलता है, पिता का प्यार भी मिलता है, सिख का प्यार भी मिलता है, वड्डियां का प्यार भी मिलता है। उन्होंने वास्ते गुरु अमरदास पिता महाराज के अंदर वो अपनी माँ भी देखते हैं, अपने पिता को भी देखते हैं, एक सिख को भी देखते हैं कि सिख का सिख के जो नाल प्यार है, एक बुजुर्ग होने के नाते, वड्डे होने के नाते वो बुजुर्गी का प्यार भी डुल डुल पैंदा है धन गुरु रामदास पिता महाराज के उत्ते। अमृत वेले उठना, हुण गुरु अमरदास पिता महाराज गुरु बने ने, उन्होंने सेवा च लगे रहते हैं। गुरु घर की तो लगातार सेवा करते आ रहे हैं, और हुण गुरु की सेवा च लगे ने। 1553 विच गुरु अमरदास पिता महाराज ने अपनी पुत्री बीबी भानी जी के नाल आनंद कारज कर दिते। हुण बीबी भानी भी सेवा करते हैं नाल, ते गुरु रामदास पिता महाराज भी सेवा करते हैं। सेवा कर करके गुरु महाराज जी ने इतना रिझा लिया है, उन्होंने निमरता भाव, उन्होंने रूहानियत, गुरु रामदास महाराज का मिठ बोलड़ापन, ये सारिया चीज़ां उन्होंने विच अगले गुरु की महक पैदा कर रही हैं। 1574 का वक्त होया कि आप जी ने सारिया परीक्षा करने तो बाद, थड़े बनमान तो बाद, जो एडी निमरता जीवन च देखी, तब गुरगद्दी जिहड़ी सी भाई जेठा जी ने बख्श के गुरु रामदास महाराज बना के प्रगट कर दिता। ते जिन्ना गुरियाई प्राप्त हुई, उस दिन आप जी के अंदर एक दर्द झलकिया सी सच्चे पातशाह भी तेरा ही घर है जिस घर दे विच एडियां वड्डियाइयां प्राप्त होंदियां ने। नहीं तो सच है, कहन लगे धन गुरु रामदास पिता महाराज, क्योंकि हुण गुरगद्दी प्राप्त हो गई है, तो शब्द उच्चारण किया, कहते जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सच्चे पातशाह तू वडियाई दिती, मैं तो कीड़ा सां, रुलते फिरते हुंदे सां, ते अज तू मैं कीड़े नूं पातशाह बना दिता। अंदर वैराग का जन्म होया। गुरु अमरदास महाराज जी ज्योति जो समा जाते ने, बहुत बड़ी सट हिरदे नूं वजदी है, और एक एहसास करते हैं कि लोग बचपन में मैनू अनाथ कहते सन, पर अज वो एहसास हो रहा है मैनू कि माता पिता के जान का की दुख होता है। अज मैनू पता चलिया कि अनाथ क्यों कहते सन लोगों। अज मैं सच्ची मुच्ची अनाथ हो गया कि इतना कुछ प्राप्त होया जिस कोलों अज वो छड़ के चले गए। और तुसीं देखो कि 1574 तो लैके 1577 तक ਜਿਹੜੇ कारज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ की धरती पर चल रहे सन, इतिहासकार कहते उन्ना चिर बंद रहे। उस वेले गुरु रामदास महाराज ने होर कई चीज़ों वाल खास ध्यान दिता। गुरु अमरदास महाराज ने सिक्खी के प्रचार वास्ते 22 मंजियां अते 52 पीढ़े प्रचारक थापे सन। गुरु साहब जी ने वेख्या भी सिक्खी जिहड़ी है वो प्रफुल्लित हो रही है। गुरु नानक पातशाह जी का प्यार लोगों में डुल डुल पैंदा है। तो गुरु साहब जी ने फिर उत्थे फिर मसंद प्रथा आरंभ की। मसंत जिहड़ा वो फारसी का लफज है जिसका अर्थ है मसनद। मसनद का अर्थ होंदा जिहड़ा गद्दी दे नाल जुड़िया होया। आओ कि गुरु नानक की गद्दी दे नाल वो सिख जिहड़े जुड़े हुए सन। इस गल नूं फिर समझ लेना, मसंद कौन सन? जिहड़े कि गुरु घर नूं प्यार करते सन, गुरु गद्दी दे नाल जुड़े हुए सन, कई सालों तो गुरु घर का प्रचार प्रसार कर रहे सन। सतगुर ने वेख्या कि इन्हां दे अंदर भावना है, उन्होंने मसंद थाप के वख वख इलाकों के अंदर प्रचार करने वास्ते भेजा, नाले कार सेवा इकट्ठी करने वास्ते। इत्थे तक कि भाई गुरदास जी हुणां नूं आप जी ने प्रचार वास्ते पूरब वल भेजा। आप जी ने काशी विच जाके संस्कृत की विद्या ग्रहण की अते पूरब विच जाके प्रचार किया। आगरे वल काशी
ये सारे इलाके भाई गुरदास जी ने काफ़ी लंबा समा सिੱਖੀ का प्रचार किया, क्योंकि सिੱਖੀ जिहड़ा है ना वो प्रचारक धर्म है। जे प्रचार होंदा रहेगा सिੱਖੀ टिकी रहेगी, जे प्रचार खत्म कर दिता जो मर्जी बाकी के साधन कर लो सिੱਖੀ नहीं टिकेगी। सिੱਖੀ टिकेगी प्रचार दे नाल, सिੱਖੀ प्रचारक धर्म है, क्योंकि सिੱਖੀ सिखण का धर्म है तो सिखिया जा सकता विचार दे राही। और गुरु नानक पातशाह ने एक आख्या सी, सिੱਖੀ सिखिया गुर विचार नदरी करम लंघाए पार। जिहड़ी सिੱਖੀ है वो सिक्ख्या विचों पैदा होएगी ते सिक्ख्या जिहड़ी वो विचार विचों जन्म लएगी। इस करके सिੱਖੀ धर्म विचार का धर्म है, प्रचारक धर्म है। सतगुरु जी ने पूरा जोर किया कि सिੱਖੀ का चंगी तरीके दे नाल प्रचार किया जाए। और थां थां ते जिथे भी गुरु नानक पातशाह गए धर्मशाला बणियां, उत्थे सिखां नूं भेजिया, क्योंकि हुण काफ़ी लंबा समा हो गया गुरु नानक पातशाह जी की उदासियां कीतियां। भावें गुरु रामदास महाराज जी ने ज़्यादा लंबियां उदासियां नहीं कीतियां, पर नेड़े नेड़े के पिंडां विच आप भी जाते सिੱਖੀ का प्रचार करते। और उस वेले आप जी ने फिर उत्थे बाणी उचारनी शुरू की। और जिन्ना चिर आप जी लगभग 3 साल रहे, जिहड़ी गोड़ी की वार महला चौथा दी है, इस वार नूं किते ध्यान नाल पढ़ना। इस वार दे विच जितने भी गुरु साहब जी ने अगम्य फुरमान बोल बरते ने, सब गोविंदवाल साहब की धरती नाल ताल्लुकात रखते हैं। किते हरि राम तपे नूं कहंदे ने कि तपा ना होवे अंदरों रोबी, नित माया नूं फिरै जजमा लिया। उत्थे जिहड़ा गोविंद दा मरवा खतरी सी, जिहड़ा कि गुरु घर दी रोज़ अकबर के दरबार च शिकायतां करदा सी, गुरु साहब जी ने उसनूं भी लिखिया उस बाणी दे विच। और बड़े ऐसे लफज बरते, मल जूई काला भरिया नीला खिलोदड़ा, तिन बेमुख है बेमुख है न पाया। सदों कहने तू बेमुख हो चुके हैं। क्योंकि वो वार जिहड़ी है ना गोविंदवाल साहब की धरती विच जो गुरु दोखी सन, उन्हां सारियां दी गल्लां जिहड़ी है वो प्रगट करदी है। वो सारियां गल्लां लिखियां कि जदों उत्थे दा हरि राम तपा जिहड़ा सी वो की करदा सी कि वो गुरु घर की निंदा करता सी। ते गुरु साहब जी ने जो विधान गुरु अमरदास महाराज ने लंगर का किया ना, भी जेड़ा लंगर छकन आवेगा एक मोहर मिलेगी, दूजे दिन 2 मोहर, तीजे दिन 3 मोहर। तो इस तरह आखिर कहा सतगुरु ने, जेड़ा लंगर छकन आवेगा ना गुरु घर के 5 मोहर मिलणगियां। सारा गोविंदवाल साहब लंगर छकन आया, पर हरि नाम तपा ना आया, पर अंदरों लालच जागया कि 5 सोने दियां मोहर मिलणगियां। अपने पुत्र नूं गुरु घर दे जो लंगर सी उहदी कंध तो टपा के अंदर भेज दिता। ते वो जिवें कि कंध टपी डिग गया, लत टुट गई। उन्हें चीखां मारियां, देखिया लोगों ने, कौन? कहंदे हरि राम तपे दा पुत्र है। सतगुरु कहंदा तू तो बड़ा लोभी निकलिया, एडा लालच कि अपने पुत्र के शरीर का ख्याल ना किया, सगों जो लालच बस 5 मोहरां दे अपने पुत्र की लत तोड़ा बैठा तू। एक एक गल जिहड़ा घोड़े की वार तुसीं वेखोगे ना, उहदे विच एक एक गल गुरु साहब जी ने उस नगर के 3 सालों में आप जी बाद में गुरु गए तो बाद रहे, वो सारे वचन लिखे। हर एक का पाज उगोड़िया। जिहड़े लोग कर्मकांडी सन, पाखंडी सन, जिहड़े तपे बहते सन, धूने तपाण वाले जिहड़े लोग सन, जिहड़े लोगों के उत्ते प्रभाव पाते सन, सतगुरु जी ने उन्होंने आख्या भाई ठीक है तुसीं लोगों ते प्रभाव पा के चंगा धन इकट्ठा कर सकते हो, पर रब की दरगाह विच की मूँह लैके जाओगे। 8 वारां ने गुरु ग्रंथ साहब दे धन गुरु रामदास पिता महाराज जी दी 8 वारां। सब तो वध वारां गुरु रामदास महाराज जी दियां ने। सतगुरु ने कृपा की 30 रागां दे अंदर बाणी उचारण की, 19 रागां दे अंदर गुरु नानक पातशाह जी के उन्हां च बाणी उचारण की, 11 नवे राग उचारण करके उन्होंने सतगुरु जी ने बाणी उचारण की। और सिख वास्ते कुछ डेफिनेशन क्लीयर कीतियां। लोग कहते सन गुरु कौन, सतगुरु कौन?
सतगुर ने कहा कि सतगुर की महिमा यह है, सतगुर की डेफिनेशन ये है कि जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है। लोग पहले भटकते सन, हर एक बंदा जना खना अपने आप को सतगुर अखवाउंदा सी। गुरु रामदास पिता महाराज ने एक डेफिनेशन क्लीयर की कि जिसनों मिल के आत्मिक आनंद पैदा होता है वो सतगुर है। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कही है। मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लईए। मन की दुविधा बिनस जाती है तो परम पद भी हासिल हो जाती है। फिर सतगुरु जी ने कहा कि जिथे सतगुर नूं मिल के आत्मिक आनंद मिलता है, मन की दुविधा बिनस जाती है, परम पद हासिल हो जाता है। तो गुरु साहब जी ने यह भी आख्या कि गुरु वही है जिसके कोल ये बाणी है। पाओ कि जिसके अंदर रब्बी बाणी है, जिसके कोल रब्बी पैगाम है, और रब्बी पैगाम करके ही बाणी गुरु होने करके ही वो गुरु है जिसके कोल ये बाणी है। इस करके उन्होंने जो गुरु नानक के घर का सिद्धांत से शब्द गुरु सुरत तुम चेला, उस सिद्धांत को अगे रखद्या कहा कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ये कितने भुलेखा ना खा जाइयो, दुनिया के अंदर बाणी गुरु है, गुरु ही बाणी है। इस बाणी विच आत्मिक जीवन देने वाला जिहड़ा सरमाया खजाना भरिया पे संभालिया पे, बाणी ही आत्मिक जीवन देगी। बाणी ही गुरु रामदास पिता महाराज ने आख्या इत्थे बस नहीं, मैं गारंटी नाल कह सकता है गुर बाणी कह। जिस गुरु को मिल के आत्मिक आनंद मिलना है, जिस गुरु को मिल के दुविधा दूर होनी है, जिस गुरु को मिल के उत्तम पद हासिल हो जाना है, कहते गुरु जेड़ा वो बाणी आखदा है। गुरु बाणी आखदा है, गुर बाणी कह, गुरु बाणी कह कहता है। जेड़ा गुरु की बाणी नूं कहता है और जेड़ा गुरु साहब जी बाणी कहते हैं, सेवक जन मन है। जिहड़ी गुरु ने बाणी आखी, जेड़े उपदेश आखे, जेड़ा गुरु ने अपने मुखारबिंद तो रब्बी रूहानी बोल प्रगट किए। सतगुर कहते जेड़ा इन्हां बोलों नूं मन लएगा, गुरु उपदेश को मन लएगा, गुर बाणी कह सेवक जन मन है। कोई सेवक जन बन के मन लएगा। गुस्ताखी माप सिखो। जे आपां सेवक ना बन सके, गुरु नानक दे जन ना बन सके, रोज़ बाणी आखी जाओ, कुछ नहीं बनन लग्या। जिन्ने मर्जी बाणी पढ़ी जाओ, जे सेवक ना बने ना, जे जन ना बने, जन बन के बाणी ना आखी, सेवक बन के बाणी ना आखी, ते बाणी ने साडा कुछ नहीं करना। क्योंकि जेड़ा जिन बन के पढ़ रहा ना बाणी, उसका कुछ नहीं बन सकता। इस करके सदक ने मैं गारंटी लेना है, गुर बाणी कह सेवक जन मानै। गुरु जेड़ा बाणी आखदा और सेवक जन मन के कोई इस गुरु की बाणी को मान लैंदा है। पड़थक गुरु निस्तारे, कहते गुरु पड़थक तौर तो उसका निस्तारा कर देगा। एक गारंटी लेंदे सब। पर जन बन के, सेवक बन के, दास बन के, गुलाम बन के, चाकर बन के ये बाणी को गाना सिखाना है। मन ना गुरु साहब की गल। फिर सतगुरु रामदास महाराज ने आख्या कि इस गुरु नानक के दर ते सारे आउंदे ने, सेवक सिख पूजन सब आम है। हर एक अपने अपने अकीदे के राही गुरु साहब जी को पूजन वास्ते आउंदा है। कोई सेवक अखवाउंदा है, कोई सिख अखवाउंदा है भी मैं गुरु साहब का सेवक हाँ, कोई कहना मैं गुरु का सिख हाँ। सतगुरु कहते वो सारे गुरु के दर ते आउंदे ने। सेवक सिख पूजन सब आम है, सब गाम है, हर हर उत्तम बाणी। कहते हरि परमात्मा की उत्तम बाणी सारे गाउंदे ने। भावें वो पाठ के राही होवे, भावें कीर्तन के राही होवे, कथा के राही होवे, सारे उत्तम बाणी गाउंदे ने। पर सतगुरु जी ने एक विचार साढ़े सामने रख दी कि ठीक है तुसी गाउंदे हो, सेवक बन के आओ, सिख बन के आओ, परमात्मा की उत्तम बाणी गाओ। पर एक ख्याल रखना जीवन विच, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गाया सुनिया उन्हों का प्रवान है,
जिन्हों ने सतगुर की आग्ञा नूं सत करके मान लिया। नहीं तो गुरु साहब कहते कोई गावे रागी नादी बेदी पहुँपाद कर, नहीं हर हर कीजै राम राजे, तिन्हां अंतर कपट विकार है तिन्हां रोए क्या कीजै। धन गुरु रामदास महाराज गाई जाओ, कहते जिन्हों के अंदर कपट है विकार है, कहते उन्हों का गाया सुनिया भी प्रवान कोई नहीं। गाया सुनिया उन्हों का प्रवान जिन्होंने गुरु साहब की आग्ञा नूं सत करके मन के गुरु बचनों के मुताबिक अपने जीवन नूं कर लिया। गुरु साहब जी गोविंदवाल साहब तो अमृतसर साहब आ गए। अमृतसर साहब आए तो आप जी के भराता भाई सियारी मल जी लाहौर तो बेनतियां करते हैं कि अज तुहाडे कोल गुरु नानक का पद हासिल है, कृपा करो हुण एक बारी अपने मकान के अंदर, अपने महलों के अंदर, अपने घर के अंदर आके चरण पाओ। सतगुरु जी पहली बार आप जाते ने जिथे आप जी का प्रकाश होया, उस घर में जाके रहते ने, कुछ दिन टिकते ने। वो घर करना गया, वो धर्मशाला बन गई, सिक्खी का प्रचारक केंद्र बन गया। गुरु साहब जी ने उत्थे धर्मशाला स्थापित करके आप बाद के अंदर कुछ दिन सियारी मल के कोल रहे। उत्थों रोज़ धर्मशाला में जाते, संगतां नूं दर्शन देंदे, वापस फिर भाई सियारी मल के घर आ जाते। उस तो बाद गुरु साहब किस दिन लाहौर में बढ़ के प्रचार करके सिक्खी का, तो आप जी फिर वापस अमृतसर साहब की धरती पर आ गए। अमृतसर साहब का पसारा बदल लग पाया। आखिर के अंदर समा आया 1579 का। उस वेले अकबर बादशाह आप जी नूं मिलन वास्ते अमृतसर साहब की धरती पर आउंदा है। उन्होंने दिनों के अंदर एक चीज़ होर गुरु साहब जी ने देखी भी इस गद्दी का जिहड़ा लालच है वो मेरे बड़े पुत्र पृथ्वी चंद के अंदर उमड़ उमड़ के पै रहा, और कि लालच बढ़ता जा रहा है। इस करके वो छोटी छोटी गल्लां तो धन गुरु रामदास महाराज नूं गल्लां कह जांदा, कोई ना कोई झगड़ा करता पाओ। 1580 के करीब फिर सियारी मल के पुत्र का ब्याह है, तो गुरु साहब जी नूं फिर बेनती हुई भी सतगुरु जी तुसी आप आओ, मेरे पुत्र का ब्याह है, तुसी चरण पाओ। सतगुरु कहते नहीं हुण असीं नहीं आउणा, हुण साडी संतान उत्थे कोई जाएगी। पृथ्वी चंद जी कहे भी तुसी जाओ। वो कहण लगे जी इत्थे दा कारज कौन देखेगा। कारज देखने की गल नहीं सी, मन दे विच एक डाउट सी कि छड़ के चले गए, किते ऐसा ना हो गद्दी दूजे किसी पुत्र नूं दे देण। सतगुरु नहीं गया। महादेव जी ने कहा, कहते मेरा किसी नाल कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो बैरागी बनया रहिंदा सी। वो कहता मेरा किसी रिश्ते नाते नाल, किसी परिवार के नाल मैनूं कोई लैना देना नहीं। सतगुरु जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं आख्या, उस वेले ही आप जी ने कमर कसे कर ले तो लाहौर चले गए। पिछे जो देखा कि पृथ्वी चंद छोटी छोटी गलों तो लड़ता है, उस तो बाद जो गुरु अर्जन देव जी महाराज वापस आए, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज के नाल माता भानी बीबी भानी जी का भी प्यार बहुत है। गुरु रामदास महाराज भी बहुत प्यार करते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। क्यों? क्योंकि आप जी आज्ञाकारी सपुत्र होकर विचरते हैं। पर पृथ्वी चंद नूं ये गल कहनी पई सतगुरु जी नूं, कहण लगे काहे पूत झगड़त हूँ संग बाप। आखण लगे पुत्र अपने पिता दे नाल क्यों झगड़ा करता है। काहे पूत झगड़त हूँ संग बाप, जिनके जने बड़ी रे तुम हो तिन सो झगड़त पाप। भी जिन्हां दा जनिया बड़ा कीता तू है, उन्हां नाल झगड़ा करना सब तो बड़ा पाप है। अज जे हर एक सिख ये गल सिख लवे तो जिहड़े घरां दे अंदर कंधा लग जांदियां ने ना, न्यारे साझे हो जाते हैं, ये नहीं होणगे। ये जिहड़े झगड़े होंदे ने, ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? धन करके, गद्दियां करके, पदवियां चाहिए। सतगुरु जी ने हर एक सिख लई ये गल नियत की सिखा भी ये ख्याल रखने अपने माता पिता का। भावें अज पृथ्वी चंद गुरु रामदास महाराज के नाल लड़ता है, पर तकरीबन लोगों की हालत इस तरह की है। अज देखो कितने परिवार ने गुस्ताखी माफ, जिन्हों के बच्चे कह देंगे ने जी सानू जो जमीन साढ़े नाम ला दो जी,
जो बैंक 'ਚ पैसा साढ़े नाम ला दे उन्होंने पूछे क्यों? जे माँ प्यो दे पिया तो वह भी तो तुहाडा ही है। पर अपने नाम की बड़ी लालसा लोगों को लगी हुई है। फिर उसके करके झगड़े करते हैं, घर 'ਚ कलेश पैदा होंगे ने, झगड़े होंगे। सतगुरु जी ने ये गल्लां साडे सामने रखियां और सानू ये विचारधारा पक्की कराई कि इस तरह का जीवन नहीं गुजारना सीखने। इस तरह गुरु साहब जी ने लामा वर्गी बाणी साड़ी झोली 'च पाई। गुरु रामदास पिता महाराज ने होर बाणियां उच्चारण करके सानू जीवन का वो सच दसिया और गुरसिखां दे बारे इतनी वडियाई धन गुरु रामदास महाराज ने बख्शी। इत्थे तक कह दिता कि गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पीगत पाए। गुरु रामदास महाराज ने इन्होंने सिक्खी की मर्यादा को मुकम्मल तौर पर सब तो पहला साढ़े सामने रख के कहा सी कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठर नाम त्यावै, उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावै, फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावै, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम त्यावै। सतगुर सिखा तेरी ये मर्यादा है जीवन की। इस तरह गुरु रामदास पिता महाराज ने अपने जीवन काल के 7 साल गुरगद्दी ते बैठ के जिथे कि 30 रागां के अंदर बाणी उच्चारण की, उत्थे अमृतसर सरोवर दरबार साहब जिथे अज बनया उस थां ते सत्संगत करके उसकी महानता नूं महान किया। अते उत्थे विचरते हुए आप जी ने गुरगद्दी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं दे के आप जी इस तरह अपने संसारिक यात्रा पूरी करते हुए और एक दुनिया के वास्ते मिसाल कायम कर गए कि जदों तुसीं सच के मार्ग पर तुरदे हो, अकाल पुरख वाहिगुरू का आसरा लैके चलते हो, थोड़े जीवन के अंदर पवित्रता है, दृढ़ संकल्प ने, तो तुसीं उच्चा रुतबा जिहड़ा वो हासिल कर सकते हो जो उन्होंने प्राप्त होया। और उन्होंने बारे फिर भट्टा ने कितनी उस्तत की। इत्थे तक गुरु रामदास महाराज नूं भट्टा ने कहा भी सच्चे पातशाह ये गल सच है कि जो असी अपने वाल वेखते हैं और हुण तेरे वाल वेखते हैं तो एको ही गल कहण उचित करता है कि हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। असी अवगुणा नाल भरे हुए हैं, तो साडे विच एक भी गुण नहीं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विख खाही, माया मोह भरम पै भुले, सुत दारा सुप्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। सारे अरदास करके जाओ गुरु साहब जी के चरणों। सतगुरु आप जी का अज पावन प्रकाश पर्व है, अपनी मेहर करो, अपनी कृपा दृष्टि करो, जो रूहानियत सानू हासिल हुई उसका एक किनका भी सानू प्राप्त हो जाए। अपनी शरण विच रखो, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास को, गुरु रामदास के अगे अरदास करो कि राखो सरनाई। ये सच्चे पातशाह अपनी शरण च रखो, अपने चरणों नाल जोड़ के रखो। जे किते जीवन च असी डोलीए ना तो सानू भी समझा दो कि सिखा डोलना नहीं है, जीवन अडोल होकर गुजारना है। जदों आपां गुरु की बाणी नाल जुड़ते रहांगे, गुरु के सबक नूं जीवन का आधार बना लवांगे, उस वेले सच जानना असी अपने जीवन की इस असलियत नूं गुरु नूं कह देवांगे कि हम अंधले अंध विखै विख राते, क्यों चालना गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। गुरु कृपा करे कि जो मालक दियां वडियाइयां ने जो उन्होंने अपनी बाणी के राही साडे नाल सांझियां कीतियां, जो उपदेश सिखां वास्ते नियत किए सतगुरु जी ने, आपां सतगुरां दे सिख होने के नाते उन्हां उपदेशों की कमाई करिए, फिर जाके गुरु नज़रां विच प्रवान होवांगे, फिर साडे हो जाणगे ये लोग सुखीए और लोग सवेले नानक हर पाओ आपे मिलदे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी आयां ਨੂੰ। धन धन गुरु रामदास पिता महाराज के प्रकाश पुरब की समुची कमेटी सरदार अमनजीत सिंह टक्कर, प्रधान साहब सरदार गुरमीत सिंह गढ़िया, सकत्तर साहब समुची कमेटी, समुचे स्टाफ वालों सारिया संगतां नूं लख लख बधाइयां। जी आयां नूं। आप जी ने बड़े प्रेम नाल हाजरियां भरदे गुरु जस सरवण किया अते गुरु साहब जी की सिफ सलाह की है। तुहाडा एक एक कदम चलिया सतगुर लेखे विच लाउण, एक एक वचन सुनिया सतगुर की कृपा करन कि हृदय च बस जाए
ताकि असी सतगुरु जी की बाणी के मुताबिक तुर के अपने मनुखा जीवन को सफला कर सकीए, दुनिया की हर एक औंकड़ दुख का सामना कर सकीए। ये उन्होंने जीवन चो सीखने को मिलता है। मेरिया भुलां मेरी चोली विच गुरु के वचन हृदय विच वसाना। बहुत बहुत बधाई दिंदा होया सतगुरु जी के प्रकाश पुरब दियां खिमादा जाचक हाँ जी। फतेह जी सांझ करूँ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू